Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. Today we are going to have the fifth module of the topic simple interest and compound interest. In today's module, we will cover the moderate level questions of simple interest and compound interest. मतलब आज हम वो questions करेंगे जिसमें SI CI दोनों साथ में हो. So first let me share the screen with you. So today's, as I told you, this is the fifth part of simple interest and compound interest and आज हम moderate level questions करेंगे वो question जिसमें SI CI दोनों आता हो. Okay, so let's start with the session. First question: on a certain sum, SI and CI for 2 years are 400 and 420 respectively. Find the annual rate of interest. Okay, so पहले तो हमें ये देखना है कि SI और CI 2 साल का और 3 साल का एक फॉर्मूला है. अगर आप इस फॉर्मूला को अच्छे से रट लो तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं. So this is the formula of CI minus SI if the tenure is 2 years. And for 3 years, this is the formula of this is the difference between CI and SI. Okay, so यहाँ पर क्या दिया है? For 2 years, बात हो रही है 2 साल की, and 2 years का SI is 400 and CI is 420. You need to find the rate of interest. ठीक है, तो CI और SI 2 साल के लिए ये फॉर्मूला है. The formula is like this: CI minus SI is equal to P into R by 100 का square, and that is also equal to SI into R by 200. Now in this particular question, प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो ये हम प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला कंसिडर नहीं करेंगे. सो वी विल consider this as the formula that CI minus SI is equal to SI into R upon 200. So CI is 420, SI is 400. Okay, so that means कि 20 is equal to 2R, so R is equal to 10%. Answer is 10%. So हमने फॉर्मूला से बहुत ही इजीली 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इफ यू नो द फॉर्मूला. हावेवर ये क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है. तो whatever method you are comfortable with, formula is anytime better, क्योंकि फॉर्मूला हमें कंफर्ट देता है. फॉर्मूला में हमें वैल्यू डालनी होती है and we get the answer. However, this question we can solve using concept also. तो कॉन्सेप्ट से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें वो देख लेते हैं. देखो बात हो रही है 2 साल की और इसमें 2 लोग हैं CI and SI. So first year and second year. Now we know that कि SI जो होता है वो थ्रू आउट ऑल द इयर्स इज सेम. मतलब फर्स्ट ईयर में जितना SI मिल रहा है उतना ही SI आपको 10th ईयर में भी मिलता है. Here SI for 2 years is 400. It means that every year the person is getting 200 rupees as the SI. So first year का SI 200, second year का SI 200, and hence the total simple interest is 400. We also know that ki simple interest and compound interest for the first year is always same. So first year ka simple interest, if it is 200, then first year ka compound interest also has to be 200. But the total compound interest which they have given is 420. It means ki second year में compound interest 200 से बढ़ के 220 हो गया होगा. We also know that ki compound interest increases every year. Now, why there is an increment of 20 rupees here? The increment of 20 rupees, ये जो 220 rupees सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिला है उसमें से 200 rupees वाला इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे मिला है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर भी मिला था. एंड 20 rupees का ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला है, दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट. और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 200. तो ये जो 20 rupees मिला है दैट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन 200 rupees. अभी आप सोचो कि अगर आप 200 rupees पे अगर आपको 20 rupees का इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मीन्स द प्रिंसिपल इज 200 and the interest is 20 rupees. So can I say here the rate of interest is nothing but 10%? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है तभी ही 200 पे 20 rupees का इंटरेस्ट मिलता है. सो आंसर इज ऑप्शन डी, 10%. Next, on what sum will the difference between simple and compound interest for 3 years? So here the tenure is 3 years.
rate of interest is 3%, and the difference, that is CI minus SI, is given as 8.181. Now, such type of question also we can easily solve using the formula. So, formula for 3 years is this. So, we will apply the formula. CI minus SI is given as 8.181. This is equal to principal on what sum में, यानी कि आपको principal निकालना है. That is equal to principal into R by 100 का square. R is 3. So 3 by 100 का square into 3 plus 3 by 100. ये है formula. यहाँ से हमें easily P मिल जाएगा. So let's simplify this equation. So this is nothing but P into 3 का square 9 and 100 का square 10,000 into 3 plus 3 by 100 is nothing but 3 into 100 plus 3. That is equal to 303 by 100. From this we can say that principal is nothing but सब values left hand side में लेके जाएंगे. So सबसे पहले तो यहाँ से पॉइंट निकालते हैं. देखो पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है तो यहाँ से 3 जीरो उड़ा देते हैं. सो दिस विल बिकम 8181 into कितने जीरो है टोटल 1 2. इसको 9 से डिवाइड करेंगे. सो दिस इज 909. इसको आंसर आ जाएगा 3. So option B is the correct answer. So this is very simple questions if you know the formula. Next, if compound interest on certain sum at 8% for 2 years is 3328, find SI on the same sum at same rate for the same period. So once again ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट वी विल यूज द फॉर्मूला. 2 साल की बात हुई है. अच्छा, एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि ये फॉर्मूला हम तभी ही अप्लाई कर सकते हैं जब प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर सेम. If the principal is different, if the rate of interest is different, then you cannot apply this formula. In this particular case, since the principal is same, rate of interest is same, so we can definitely apply the formula. So here R is 2%, tenure is 2 years, CI is given as 3328 and you need to find SI. ये निकालना है. So ठीक है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. So formula is, once again प्रिंसिपल नहीं पता है तो वो प्रिंसिपल जिसमें है उसको नहीं रखेंगे. So this part we will do. Now CI minus SI. SI को हम x मान लेते हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है. This is equal to x into 8 upon. So from this I can say that CI is equal to, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x upon 25 plus x. अच्छा, CI दिया है 3328. So 3328 is equal to x plus 25x is 26x upon x is equal to 3328 26. इसको इसका पहले हाफ करते हैं. सो दिस विल बिकम 13. इसका हाफ करते हैं तो 1664 इसको डिवाइड करेंगे 13 से हो ही जाएगा. तो 136 यानी कि 2 and 104 यानी कि 8. तो इट इज 128 into 20. 128 into 25. कोई भी नंबर को जब 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 128 डिवाइड बाय 4 कर दो और इंटू 100 कर दो. This is nothing but 32. So answer is 3200. Answer is 3200. Option A is the correct answer. तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला से आंसर निकाला. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एक और चीज भी कर सकते थे. So let me solve this question in a different way. ताकि आपको मैं अलग अलग तरीके से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको हर तरीके से समझ में आए कि क्वेश्चन को कैसे अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं and your concepts become clear. Okay, now here the rate of interest is 8% and tenure is 2 years. तो इसमें SI के हिसाब से
RT% कितना हो जाएगा? सो RT% from the SI is nothing but R into T, that is equal to 16%, and RT% from CI point of view, because CI पे सक्सेसिव चेंज लगता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सक्सेसिव चेंज का, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इंटू 8 बाई 100, दैट इज इक्वल टू 16.64%। यानी कि अगर आपको 16.64% का इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 3328। तो ये जो 16% का इंटरेस्ट है जो कि SI वाला है, और यही हमें फाइंड आउट करना है, तो ये किसके बराबर होगा? तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वैल्यू जो है ये डबल हो रही है इसकी, तो ये इसका भी डबल कर देंगे, तो 32, so 32 वाला इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ आल्सो यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 3 years and 2 years are in the ratio of 19:6। मतलब ये दिया है कि CI माइनस SI का जो डिफरेंस है 3 इयर्स का, डिवाइडेड बाय CI माइनस SI का जो डिफरेंस है 2 साल का, ये जो डिफरेंस है ये 19:6 का है। Now, in this particular question, if you don't know the formula, तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो सकता है। क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है तो हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now we know that CI minus SI for 3 years is this। ये है फॉर्मूला, so it is P on R square by 100। This is the CI minus SI for 3 years and divide by P into, this is CI minus SI का difference for 2 years। This is given as 19/6। यहाँ पर ये और ये उड़ा देंगे, so एंड में बन रहा है 3 plus R upon 100। So from this we can very well find out R। So R by 100 is equal to 100/6 की वैल्यू होती है 16.66%। दिस इज द आंसर। ये बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बिकॉज हमें फॉर्मूला पता था। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, SI for certain sum for 3 years is 774 while CI for the same sum for 2 years is 602। Calculate ROI। Now once again this question we can do using two different methods। एक तो कॉन्सेप्ट से करते हैं और एक फिर हम फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो हम बात सीधा 2 साल की करते हैं। 2 साल, एक है CI, एक है SI, फर्स्ट ईयर। यहाँ पर आप देख लोगे तो SI जो है वो 3 साल का दिया है, तो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई आई हैव कंसीडर्ड 2 इयर्स, because SI for 3 years is 774 and we also know that SI remains same throughout all the years। It means कि अगर 3 साल का SI 774 है तो 1 ईयर का SI, फर्स्ट ईयर का SI 774/3 होगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ रहा है 258। इट मीन्स कि फर्स्ट ईयर का SI is 258, सेकेंड ईयर का SI भी 258 और थर्ड ईयर का SI भी 258 ही होगा। अगर हम थर्ड ईयर लिखते हैं यहाँ पर तो थर्ड ईयर का SI भी 258 and hence the total will become 774। ठीक है, now CI for 2 years is 602। We also know कि SI and CI for the first year remain same। तो फर्स्ट ईयर का CI 258 है और टोटल जो CI है, CI सिर्फ 2 साल का है, सो टोटल CI 602 है। इट मीन्स कि सेकंड ईयर का CI इज नथिंग बट 602 minus 258, 12 minus 8 4, 9 minus 5 4 and 3 minus 5 minus 2। नाउ ये जो 344 रुपीज, फर्स्ट ईयर का CI इज 258, सेकंड ईयर का CI इज 344, तो ये 344 कैसे मिला होगा? सो इसमें से 258 इंटरेस्ट जो मिला है दैट इज नथिंग बट ऑन द प्रिंसिपल, एंड जो बचा हुआ है सो 14 minus 8 is 6 and 33 minus 25 is 96। सॉरी 33 minus 25 is 86। तो ये जो इंटरेस्ट मिला है 86 रुपीज का, ये 344 प्रिंसिपल के ऊपर मिला,
इट मीन्स दैट इफ द प्रिंसिपल इज 344 तो उसके ऊपर 86 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है 1 साल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज SI is 86, tenure is 1 year. So 86 के टेबल में 774 दो से डिवाइड किया 15 12 minus 8 is 4, 344। ठीक है, सो 86 के टेबल में 258, 6 के टेबल में 8 तो नहीं है। ऐसा ही कितना हो जाएगा? एटी सिक्स इंटू थ्री होगा ना, सॉरी 3 हो रहा है। So it is 100 by 3, that is equal to 33.33% is the ओके। इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से भी कर सकते थे। फॉर्मूला से कैसे करते? वंस अगेन 3 साल का SI अगर 774 है तो 1 साल का SI 258 होगा एंड सेकेंड ईयर का SI इज ऑल्सो 258, सो द टोटल इट इज 416। मतलब 3 साल का SI अगर 774 है तो 2 साल का SI इज 416। Okay, so SI for 2 years is 416. This is SI for 2 years. And CI for 2 years is 602. तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाते तो यहाँ से भी आंसर आ जाता। That CI minus SI, that is 602 minus 416 is equal to SI is 416 into R upon. So 12 minus 6 is 6. 9 minus 1 is 8 and 186. R is equal to 186 into 200 divided by 4। अगर इसको हम 100 कर देते हैं तो ये कितना हो रहा है? इसका हाफ कर देंगे, सो दिस इज 208। 186 and 208, तो SCI for 2 years is, sorry, this is 516। ये सिर्फ 86 हो जाएगा। तो 86 by 208, ये हमें पता है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। R is equal to 100 by 3, that is equal। Next, Ankit borrowed a certain sum of money at SI for 4 years at 10% per annum and he pays 20,000 as interest. Find the CI for the same amount at 8% for 2 years. तो देखो क्वेश्चन क्या है? अंकित ने कुछ पैसे बोरो किए हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, टेन्योर इज 4 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% and he has to pay the interest which is SI as 20,000। यहां से हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यू नीड टू फाइंड CI नाउ। ये बात हो रही थी SI की, अभी आ जाते हैं CI पे। Find CI for the same amount. So principal we know. So principal is same. Principal is same here. तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से ये भी मिल जाएगा। एंड 8%, so rate of interest is 8% and the tenure is 2 years. तो एक मेथड तो ये है कि SI में we know tenure, we know rate of interest, we know simple interest as 20%, so we can find principal. That principal we will put in the second case and we will find CI for 2 years. ठीक है, बट इतना लंबा हम नहीं करेंगे। विदाउट फाइंडिंग द प्रिंसिपल हम आंसर
निकाल सकते हैं। नाउ हियर इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन नॉट अप्लाई दैट फॉर्मूला, वो 2 years वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट इन बोथ द केस। ओके, बट डेफिनेटली वी कैन फाइंड द आरटी परसेंटेज। तो एसआई में आरटी परसेंटेज कितना हो रहा है? 10% 4 years. So first year 10%, second year 10%, third year 10%, and fourth year 10%. So total RT percent has become 40%. और वही चीज अगर हम CI में देखें तो RT परसेंट कितना हो रहा है? 8% for 2 years. So we have to apply successive change का formula here. So it is 8 plus 8 plus सक्सेसिव चेंज क्या है? ये मैंने मॉड्यूल 3 में या मॉड्यूल दिस आई शोन इन द मॉड्यूल 4 कि सक्सेसिव चेंज कैसे काम करता है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। सो इट इज 16.64%। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट 40% अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो उसके सामने इंटरेस्ट मिल रहा है 20,000। ठीक है, सो इफ RT परसेंट इज 40%, देन इंटरेस्ट इज 20,000। सिमिलरली इफ RT परसेंट इज 16.64, तो इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, सो हमने देखो क्या किया, यहाँ पर 40 का 20 हो गया है, पीछे 3 जीरो लगाया है, तो यहाँ पर भी 16.64 का हाफ कर देते हैं। सो इट इज 16.64 का हाफ हो जाता है 8.32, पीछे 3 जीरो लगाने, सो 1 2, तो इट इज बेसिकली 8320 इज द। Swati has some amount of money. She invested the money in two schemes, A and B, in the ratio of 2:5 for 2 years. ठीक है, तो दो स्कीम में उसने इन्वेस्ट किए हैं, ए और बी में। द रेशियो इन विच द मनी इज इन्वेस्टेड इज 2:5। तो मान लेते हैं कि स्कीम ए में शी इन्वेस्टेड 2x and in scheme B she invested 5x. Now, scheme A offers 30% interest per annum CI. अच्छा, टेन्योर इज 2 years, तो दोनों में टेन्योर इज 2 years। फर्स्ट केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो CI है, विच इज 30%, 30% CI, and scheme B offers 15% per annum SI। ठीक है, इस तरह से है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम इज 1080। क्वेश्चन इज हाउ मच मनी वाज इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। स्कीम बी हमने अज्यूम किया है 5x, so basically we need to find the value of 5x। difference between interest earned on both the scheme is 1080। from here we will make the equation। पहले तो ये देखना है कि इंटरेस्ट ज्यादा किस में मिल रहा है, स्कीम ए में या स्कीम बी में। सो स्कीम ए में RT परसेंट जो है वो कितना है? इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट 30% फॉर 2 years। सो टोटल RT परसेंट हमें मिल जाएगा 30 प्लस 30 प्लस, so basically this is 69%, and scheme B में it is 30%। so total interest in scheme A is nothing but 69% of 2x, जो कि principal 2x है, and the total interest in scheme B is nothing but 30% of 5x। ठीक है, अभी हमें ये जानना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, 69% of 2x या 30% of 5x। तो 69% ऑफ 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हम डबल कर सकते हैं। सो 69 का डबल 70 का डबल 140, तो 69 का डबल 138। तो दिस इज नथिंग बट 138% ऑफ x। दिस इज हाउ वी कैन राइट, एंड 30% ऑफ 5x is nothing but 150% of x। So definitely scheme B is offering more rate of interest compared to scheme A। ठीक है, तो स्कीम बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? इट इज 150% ऑफ x, एंड स्कीम बी का इंटरेस्ट है 138% ऑफ x। और ये जो डिफरेंस है ये दिया है 1080। तो 150% ऑफ x माइनस 138% ऑफ x करेंगे तो 150 माइनस 138 इज 12% ऑफ x इज इक्वल टू।
आंसर इज x इज इक्वल टू 9,000. ठीक है, लेकिन हमें x नहीं निकालना है, हमें निकालना है money invested in scheme B, which is we have considered as 5x. So if x is equal to 9,000, 5x is equal to whatever. Option C is the correct answer. तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में इट्स बेटर टू फाइंड दी आरटी परसेंटेज CI SI. SI में आपको सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन करना होता है R into T. In case of CI, you have to use the concept of successive change. Next. Abhi invested certain amount of money in scheme offering 20% CI for 2 years. So यहाँ से सीधा सीधा हम RT परसेंटेज लिख सकते हैं अभी का 20% CI for 2 years. So it is nothing but 20 plus 20 plus 20 into 20 by 100, which is equal to 44%. And Mona invested 1,000 more than Abhi. तो मान लेते कि अभी का जो प्रिंसिपल है वो X था, तो मोना ने कितना इन्वेस्ट किया है X plus 1,000. ठीक है, 1,000 rupees more compared to Abhi in another scheme offering 25% SI for 2 years. Now 25% SI for 2 years का मतलब है कि first year 25%, next year 25%, so total it will become 50%. So मोना का रेट ऑफ इंटरेस्ट RT% अभी से ज्यादा है, प्लस मोना ने अभी के कंपेयर में ज्यादा इन्वेस्ट किया है. So definitely Mona is going to get more interest compared to Abhi. So find the amount invested by Abhi if the difference between Abhi and Mona is 1310. It means कि मोना को जितना इंटरेस्ट मिला है माइनस अभी का इंटरेस्ट, क्योंकि अभी को कम इंटरेस्ट मिला है क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, प्रिंसिपल भी कम है. दिस इज गिवन एज 1. नाउ पहले तो प्रॉब्लम हियर इज दैट कि प्रिंसिपल भी दोनों का डिफरेंट है. Abhi has invested X amount and Mona has invested X plus 1,000 amount. Now since she has invested 1,000 rupees more, तो उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिल रहा है. और इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट इज 50%. मतलब अगर उसने 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है तो उसे 50% ऑफ 1,000 यानी कि 500 रुपीज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये जो 1,000 रुपीज है इसके ऊपर शी इज गोइंग टू गेट 500 रुपीज का इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब ये 1310 में से 500 निकाल दो तो ये 810 हो जाएगा अगर हम प्रिंसिपल दोनों का x कंसिडर कर ले तो, बिकॉज ये 500 रुपीज का डिफरेंस तो वो 1,000 रुपीज की वजह से था. सो नाउ आई कैन से दैट कि मोना को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इट इज 50% ऑफ x. नाउ आई वांट टू कंसीडर द प्रिंसिपल एज x plus 1,000, क्योंकि 1,000 का जो कंपेंसेशन था वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर दिया है. सो फ्रॉम दिस आई कैन से कि मोना को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 50% ऑफ x, और अभी को मिल रहा है 44% ऑफ x. एंड दिस 50% of x minus 44% of x is 8.0. Means कि 6% of x is equal to. अच्छा, हमें निकालना क्या है? Find the amount invested by अभी. अभी का इन्वेस्टमेंट हमने x कंसिडर किया, so we need to find the value of x. So 6% of x is equal to 810. From this I can say that x is equal to, so 6 से डिवाइड करेंगे तो 121 और 3. Answer is 13,500 is the amount invested by Abhi. Okay, so with this we are through with the module 5. In this module we have covered moderate level question of simple interest and compound interest, जहां पर बहुत सारे questions हमने फॉर्मूला से किए और बहुत सारे questions हमने RT परसेंटेज कंसिडर करके किए हैं. So I hope you have understood my session, और अगर आपको मेरा सेशन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें. Thank you very much and keep on practicing math because math is easy.